تصوف محض ایک مذہبی نظریہ نہیں بلکہ ایک گہری روحانی واردات کا نام ہے جو انسان کو اس کی اصل حقیقت سے روشناس کراتی ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں عقل کی سرحد ختم ہوتی ہے اور دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، جہاں منطق خاموش ہو جاتی ہے اور عشق بولنے لگتا ہے۔ تصوف دراصل وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راہ دکھاتی ہے، وہ خوشبو ہے جو دلوں میں محبت اور سکون بکھیرتی ہے، اور وہ حقیقت ہے جو دنیا کی سطحی چمک دمک سے پرے انسان کو اس کے خالق سے جوڑتی ہے۔ صوفیاء کا پیغام ہمیشہ سادہ مگر حیرت انگیز رہا ہے۔ خدا کی تلاش باہر نہیں بلکہ اپنے اندر کرو۔ اسی لیے ان کے ہاں سب سے زیادہ زور باطن کی صفائی پر دیا جاتا ہے۔ وہ دنیا کے جھمیلوں میں الجھنے کے بجائے دل کے آئینے کو شفاف کرنے کا درس دیتے ہیں تاکہ اس میں حقیقت کی جھلک دیکھی جا سکے۔ عشق، محبت، خدمت خلق اور درگزر، یہی وہ عناصر ہیں جو صوفیاء کے ہاں اصل عبادت سمجھے جاتے ہیں۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کے قیدی نہیں ہوتے، وہ سب سے محبت کرتے ہیں مگر کسی کے اسیر نہیں ہوتے، وہ جسم کی نہیں بلکہ روح کی آزادی کے قائل ہوتے ہیں۔ یہ تصوف ہی کی کشش ہے کہ قرنوں سے لاکھوں لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے آتے ہیں، اس کی محفلوں میں سکون پایا ہے اور اس کی محویت میں اپنی زندگیاں بدل ڈالی ہیں۔ اس سحر انگیز دنیا کو مزید قریب سے جاننے کے لیے داستان اردو جیسے پلیٹ فارمز روحانی اور تاریخی موضوعات کو ایک نئے انداز میں پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم ماضی کے اسرار کھول سکیں اور ان ہستیوں کے پیغامات کو آج کی دنیا میں زندہ رکھ سکیں۔ تصوف کی یہ داستان نہ صرف سننے کے لائق ہے بلکہ جینے کے قابل بھی، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں، ایک زندہ حقیقت ہے جو ہر دل میں اپنا دروازہ کھولنے کے لیے بےتاب ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کون سی کشش تھی جس نے بڑے بڑے بادشاہوں، علماء کرام اور عام فقیروں کو یکساں طور پر صوفی بزرگوں کے در پر جھکنے پر مجبور کر دیا؟ وہ کون سی قوت تھی جس نے ایک بگڑے ہوئے ڈاکو کو ولی بنا دیا، ایک شہنشاہ کو درویش کر دیا اور ایک عام انسان کو نور معرفت سے مالا مال کر دیا؟ یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں تھا بلکہ ان ہستیوں کی زندگیاں کسی مہمے سے کم نہ تھیں، ایک ایسا مہمہ جو عشق حقیقی، قربانی اور روحانی بلندیوں سے جڑا ہوا تھا۔ یہ صوفیاء زمین پر رہتے ضرور تھے مگر ان کی روحانی پرواز آسمانوں کو چھوتی تھی۔ ان کے دن اللہ کے ذکر میں بسر ہوتے اور ان کی راتیں عبادت کے نور سے جگمگاتی تھیں، مگر ان کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ یہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے تھے بلکہ ان سب کے لیے جیتے تھے جو بھٹک رہے تھے، جو غموں کے مارے تھے، جو اپنے راستے کھو چکے تھے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی جوانی کا وہ لمحہ یاد کیجئے جب انہیں ان کے مرشد حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے پانی کے کنویں میں لٹکنے کا حکم دیا تھا تاکہ ان کا نفس مر سکے اور ان کی روح امر ہو جائے، یا پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ جب انہوں نے سخت ریاضت کے بعد ہند کی سرزمین کو چنا اور ایسی محبت اور اخلاص کی شمع روشن کی کہ آج بھی ان کے مزار پر ہر مذہب کے لوگ سجدہ ریز دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا صبر اور کرامتیں دیکھیے، وہ جو حق کے لیے کھڑے رہے، وہ جو خود کو فنا کر کے لوگوں کو روشنی دیتے رہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے لاہور میں وہ چراغ جلایا جو صدیوں بعد بھی بجھنے کا نام نہیں لیتا۔ کچھ لوگوں کے لیے صوفی بزرگوں کی کرامات محض داستانیں ہیں، ان کے ماننے والوں کے لیے یہ زندہ حقیقتیں ہیں۔ ایک بار حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے زمین پر کھجور کی گٹھلی گاڑ دی اور فرمایا یہ درخت بنے گا۔ لوگوں نے ہنس کر کہا کہ پنجاب کی زمین میں کھجور کیسے اگے گی، لیکن چند دن بعد وہاں ایک تناور درخت کھڑا تھا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا واقعہ تو ہر کسی نے سنا ہوگا، جب انہوں نے سورج کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو اسے بجھا سکتا ہوں۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا اور اگلے ہی لمحے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ حضرت نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور سورج دوبارہ چمک اٹھا۔ صوفیاء صرف عبادت گزار ہی نہیں تھے بلکہ وہ محبت کے سفیر تھے۔ ان کے ہاں مذہب، ذات پات، نسل کا کوئی فرق نہ تھا، جو بھی ان کے در پر آیا وہی ان کا ہو گیا۔ ایک ہندو، ایک سکھ، ایک مسیحی، جو بھی محبت کے اس سرچشمے سے فیض لینے آیا، اس کے لیے دروازہ کھلا تھا۔ ان کی تعلیمات کا خلاصہ صرف ایک لفظ میں کیا جا سکتا ہے، وہ ہے محبت۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو اس کی مخلوق سے بھی محبت کرو، اگر تمہیں جنت کی تلاش ہے تو کسی کی زندگی کو جنت بنا دو، اگر تم خدا کو پانا چاہتے ہو تو اپنے دل کو نفرت اور حسد سے پاک کر لو۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کے مزاروں پر لاکھوں لوگ آتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے ہی صحیح مگر وہ سکون ضرور محسوس کرتے ہیں جس کی تلاش میں وہ بھٹکتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صوفیاء ہمیں یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی عبادت محبت ہے اور سب سے بڑی کرامت کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دینا ہے۔
उन की जिंदगियां हैरत, सहर और मोजज़ात से भरी पड़ी हैं, मगर असल मोजज़ा यही है कि वो आज भी जिंदा है, उनका पैगाम आज भी ताज़ा है और उनकी मोहब्बत आज भी हर दिल में जगह बना रही है। ये दास्तानें ख़त्म होने वाली नहीं, ये हमेशा रहेंगी, क्योंकि रोशनी को कैद नहीं किया जा सकता और मोहब्बत को मिटाया नहीं जा सकता। क्या कभी आपने सोचा है कि एक सूफ़ी को आम इंसानों से क्या चीज़ मुख्तलिफ बनाती है? वो भी हमारी तरह खाते पीते सोते जागते हैं, मगर फिर भी उनके वजूद से एक ख़ास रोशनी फूटती है, उनके अल्फाज में एक ख़ास तासीर होती है और उनकी मौजूदगी में सुकून महसूस होता है। ये सब किसी ज़ाहिरी अमल का नतीजा नहीं, बल्कि एक गहरे बातनी सफ़र का समर है, एक ऐसा सफ़र जो हर आम इंसान को वली बना सकता है, अगर वो सच्चे दिल से इस राह पर चलने की हिम्मत करे। सूफ़ी तालीमात का सबसे पहला सबक है इश्क़ हकीकी, यानी अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत। मगर ये मोहब्बत आम मोहब्बतों जैसी नहीं होती, बल्कि ये ऐसी आग है जो इंसान के दिल में लगे तो हर चीज़ को जलाकर खाक कर देती है, सिवाय महबूब के। यही वजह है कि सूफिया का एक ही नारा होता है, जो कुछ है सब वही है। हज़रत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह ने जब अनल हक यानी मैं हक हूँ कहा तो ये इनके फना फिल्ला होने का ऐलान था। वो अपनी ज़ात को मिटा चुके थे और उनमें सिर्फ वही बाकी था जो हकीकी था, और वो है अल्लाह अज़्ज़ा व जल। सूफ़ी कहते हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल जंग अपने नफ्स के साथ है। ज़ाहिरी दुश्मन को हराना आसान है, मगर अपने अंदर छुपे हुए तकब्बुर, हवस, गुस्से, हसद और लालच को मारना सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए सूफिया अपनी पूरी ज़िंदगी तज़किया नफ्स, अपने बातन की सफाई में गुजार देते हैं। ये तज़किया नफ्स मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है। ज़्यादा बोलने की बजाय सुनने की आदत डालना ताकि दिल में सुकून उतरे, भूख प्यास और नींद की कुर्बानी देकर अपने जिस्म को रूह के ताबे करना, लोगों की खिदमत को अपनी इबादत समझना, क्योंकि सूफिया के नज़दीक मखलूक की खिदमत खुदा की इबादत है। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। सूफियों का सबसे बड़ा हथियार जिक्र होता है। वो अपनी ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से अल्लाह का नाम लेते हैं। कहते हैं कि जब जिक्र सच्चे दिल से किया जाए तो वो धड़कन में शामिल हो जाता है और फिर इंसान का सांस भी अल्लाह अल्लाह करने लगता है। बुलंद आवाज़ में अल्लाह का नाम लेना जैसा कि दरवेश हल्के में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं। खामोशी से दिल में अल्लाह को याद करना, यहाँ तक कि दुनिया की हर चीज़ से कट कर सिर्फ महबूब की मौजूदगी का एहसास बाकी रहे। आंखें बंद करके मुकम्मल खामोशी में अल्लाह के जमाल को महसूस करने का नाम मुराकबा है। यहाँ तक कि अपनी हस्ती फना हो जाए वो खामोश ही रहता है। अगरचे सूफिया इश्क में डूबे हुए होते हैं, मगर वो शरीयत पर सख्ती से कारबंद रहते हैं। उनके नज़दीक इश्क का पहला इम्तिहान यही है कि इंसान अल्लाह के हर हुक्म को दिल से तस्लीम करे। वो 5 वक्त नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को महज फ़र्ज नहीं बल्कि इश्क की अलामत समझते हैं। इसीलिए हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अल्लाह के इश्क का दावा करे और उसके अहकाम को ना माने वो झूठा है। सूफियों के यहाँ समा यानी रूहानी मौसीकी की एक ख़ास जगह है। जब कव्वाल सूफ़ी कलाम पढ़ते हैं तो ये महज मौसीकी नहीं होती बल्कि ये अल्लाह के इश्क में डूब जाने का एक ज़रिया होता है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, जो कव्वाली के बानी समझे जाते हैं, फरमाते हैं, समा वो दरवाज़ा है जहाँ से रूह अपने असल महबूब के करीब हो जाती है। इसीलिए ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कव्वाली सुनते वजद में आ जाते और बाज़ औक़ात इस कदर महव हो जाते कि आंखों से आंसू बहने लगते। सूफ़ी तालीमात का सबसे बड़ा सबक ये है कि जब तक इंसान अपनी अना, अपनी ख्वाहिशात और अपनी खुदी को ख़त्म नहीं करता वो सच्चाई के करीब नहीं जा सकता। यही वजह है कि बड़े बड़े सूफिया ने अपनी ज़िंदगियां मिट्टी में मिला दी, खुद को फना कर दिया ताकि सिर्फ महबूब बाकी रहे। यही फ़लसफ़ा हज़रत बो अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर में झलकता है, जो मैं होता तो तू ना होता, अब तू ही तू है मैं नहीं हूँ। यही सूफ़ी तालीमात का असल निचोड़ है कि हर चीज़ को फना कर दो ताकि असल हकीकत सामने आ सके। यही असल इश्क है, यही असल इबादत है और यही वो रास्ता है जिस पर चलने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। ज़माना बदल चुका है, टेक्नोलॉजी ने फासले मिटा दिए हैं, मालूमात का तूफ़ान हर लम्हा हमारी दुनिया को बदल रहा है और मादी तरक्की ने इंसान को बेशुमार सहूलतें दे दी हैं। मगर क्या रूह भी इसी रफ्तार से तरक्की कर सकी है? नहीं। जदीद दुनिया में जहाँ साइंसी इजादात ने हमें चांद तक पहुँचा दिया, वहीं दिल की वीरानी, बेसुकूनी और इज़्तिराब बढ़ता चला गया। किसी भी दौर में सूफिया का पैगाम कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि ये मोहब्बत, सब्र, आजिज़ी और अल्लाह से कुर्बत का पैगाम है और ये कदरें कभी मिटती नहीं।
अगर माजी में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती और बायज़ीद बस्तामी ने लोगों के दिलों को बदला था, तो आज भी उनकी तालीमात वही तासीर रखती हैं। सूफिया का पैगाम आज के इंसान के लिए इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दुनियावी दौड़ में हम रूहानी सुकून खो चुके हैं। नफ़रतों, तासुब और फ़िरका वारियत में इजाफा हो चुका है। इंसान ज़ाहरी तरक्की में इतना मगन हो गया है कि बातिन की इस्लाह भूल गया है। सूफिया हमें याद दिलाते हैं कि असल कामयाबी बाहर की दुनिया को फतह करना नहीं, बल्कि अपने अंदर के इंतशार को ख़त्म करना है। दिलचस्प बात यह है कि आज जदीद नफ्सियात भी इन्हीं बातों की तस्दीक करती है जो सदियों पहले सूफिया कराम पहले कह चुके हैं। माइंडफुलनेस का तसव्वुर आज मगरबी माहिरीन नफ्सियात मुतारफ़ करवा रहे हैं, जबकि सूफिया हमेशा से मुराकबा और जिक्र के ज़रिए दिल को यकसू करने का दर्स देते आए हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को मॉडर्न साइकोलॉजी में बहुत अहमियत दी जा रही है, जबकि सूफी हमेशा से यही कहते आए हैं कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। जदीद दौर में जहाँ मज़ाहिब के दरमियान नफ़रतें बढ़ रही हैं, सूफी तालीमात दुनिया को मोहब्बत और बर्दाश्त का पैगाम दे रही है। सूफी हमेशा मजहब और अकीदे से बालातर होकर इंसानियत को जोड़ने की बात करते हैं। यही वजह है कि हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मोहब्बत सब के लिए, नफ़रत किसी के लिए नहीं। हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढैंदा, पर किसे दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदा। ये तालीमात आज के दौर में मजीद कीमती हो चुकी हैं, जहाँ दुनिया को मोहब्बत और हम आहंगी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सूफी तालीमात ने जदीद दुनिया में आर्ट, मौसीकी और अदब को भी बहुत मुतासर किया है। आज भी दुनिया भर में कव्वाली, हज़रत अमीर खुसरो की इजाद को बैनुल-अक़वामी सतह पर रूहानी सुकून के तौर पर तस्लीम किया जाता है। मौलाना रूमी की शायरी मगरब में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली रूहानी शायरी बन चुकी है। सूफी रक्स, दरवेशों का घूमने वाला रक्स जिसे धमाल भी कहते हैं, आज भी दुनिया के कई हिस्सों में रूहानी तरबियत का ज़रिया समझा जाता है। जदीद दौर में सूफी तालीमात का एक नया पहलू ये भी है कि अब उनको फैलाने के ज़राए बदल चुके हैं। पहले सूफिया खानकाहों में बैठकर लोगों को तालीम देते थे, मगर आज सोशल मीडिया, यूट्यूब और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए लाखों लोग उन तालीमात से फैज़ हासिल कर रहे हैं। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए दास्तान उर्दू जैसे प्लेटफॉर्म्स सूफी तालीमात को एक जदीद अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, ताकि आज का नौजवान भी इस रूहानी दौलत से महरूम न रहे। अगरचे दुनिया तेज़ी से बदल रही है, मगर सूफी तालीमात की रोशनी आज भी जिंदा है। जदीद दुनिया में भी अगर हम सूफी तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाएं तो हम बेसुकूनी और ज़हनी तनाव से निजात पा सकते हैं। हम मोहब्बत, रवादारी और सब्र को अपना कर दुनिया में अमन कायम कर सकते हैं। हम अपनी रूह को बेदार कर सकते हैं और असल कामयाबी हासिल कर सकते हैं।